नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको दिखाएंगे जी किस प्रकार प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। धौंस जमा रही थी कांग्रेस। देखिए प्रफुल्ल पटेल ने क्या किया। मेरा यही कहना है, ऑब्जेक्शन मत लीजिए, दैट्स ऑल। दिस विल नॉट बी काउंटेड इन माय टाइम. This cannot be counted in my time when I am not speaking. मैं अपना समय इसमें नहीं गिनती होने दूंगा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना कुछ समय दिया है, इसलिए इनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब मैं शुरू करूं। उपसभापति महोदया, I can't hear what you are saying. हमारे भारत के Kindly continue. हमारे भारत, मैं क्यों बोलूं? Why should I speak? Honorable member, kindly continue. Bring the house to order, ma'am. Otherwise, why should I be speaking? Kindly continue. Kindly take your seats. Honorable members, kindly take your seats. Point of order is Kindly take your seats. Kindly take your seats. Kindly take your seats. Honorable members, kindly take your seats. I request Shri Prafull Patel to please continue. They have a point. To please continue. हमारे भारत के संविधान के 75वें वर्षगांठ पर आज हमारे इस सदन में चर्चा हो रही है और हमारे देश के संविधान पर हमें गर्व होना चाहिए कि केवल हमारे देश का ही श्रेष्ठ संविधान नहीं है, लेकिन विश्व की बहुत सारी जो लोकतांत्रिक जो देश है उसके संविधान की तुलना में हमारा संविधान श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में जहां पर अपने आप को डेमोक्रेसी के रक्षक माने जाते हैं, वो विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं कि डेमोक्रेसी अगर देखना है तो हमारे अमेरिका में देखिए। मैं आपको और सदन को इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संविधान क्यों श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ है, कि अमेरिका में काले चमड़ी के लोगों को, जिनको ब्लैक्स कहा जाता है, उनको वोटिंग का, महिलाओं को अधिकार, हमारे 1950 में संविधान में अधिकार मिलने के कई वर्षों के बाद। मैम, I can't speak like this. You have to bring the house to order. Why should I be wasting my time? You will have to bring the house to order. Otherwise, I cannot I request speak. the member to kindly stop for some time. Honorable members, kindly take your seats. You are saying, ma'am. Under which rule? Under which rule? Under which rule? Two rules, madam. Under Yes, which rule? madam. Madam, yes. 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 Mic is on. Madam, Mic is on. here, rule 238, 236, I am here raising. The clearly, 236 is clearly mentioning when a member rises to speak, his name shall be called by the chairman. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak. That means his time is over. Then he have given a chance to a person. But again, the person has spoken here. That is against the rule. Secondly, madam, I am raising the second point. Rules to be observed in 238. Madam, in rule 38, refer to any matter of fact on which here the clearly use offensive here. In 238 also reflected here, part of this there. So these two rules, 236 and 238,
8 is applicable here. So, madam, you have given the time, extra time to the person after to entitled to speak a member's name here. So this is injustice. So it should be. Secondly, you should give proper time to everybody, not only the ruling party. So my humble request, madam, this is the discussion on constitution. The constitution, values of the constitution should be protected. Thank you. We all standing here for the constitution discussion. Our constitution, the framers of the constitution, they have raised. Thank you very much. They have If raised anything is lot amiss, of valuable we will go to the points. notice of The the chair. spirit of the constitution, we should rise inside the house. Respected chair, If respected madam, anything is amiss, we our will go to the notice of the chair. Nothing. Shri Praful Patel. Ma'am, first and foremost, I have not even started. 3 minutes has gone in all this. My clock. What do you mean? Point of order What since do you one mean? party has given its own My time. clock cannot start. No point of order since one party has given its own time. Your clock must start again. I have not spoken at all, and 3 minutes has gone, and you will ask me to stop. You will have to reset the clock. Yes. Yes. Madam Vice Chairman, we are discussing our glorious 75 years of the Constitution, and we are reducing this debate to a tutu meme, which I am sorry. I apologize to you for saying so, but please let us maintain decorum. Okay, now you please relax. I was trying to make a point that we are a great democracy thanks to the Constitution framed by the founding fathers of our nation and the Constitution led by Dr. Baba Saheb Ambedkar and his team. What has endured democracy in India for the last more than 75 years. Even in a country like United States, which preaches to us about democracy, they got their rights to vote for women, the black women and the black people of black color, only around the mid-60s when Dr. Martin Luther King and many of his colleagues started a huge movement there, and that led to a change in their act, in their constitution. Voting rights were given to black people of black color. So I'm just trying to say that many a country have been democratic, the constitutions have been changed from time to time, but our constitution, our founding fathers which gave us the constitution, led by Dr. Baba Saheb Ambedkar, have really changed the entire landscape of our country. हजारों साल की जो व्यवस्था थी हमारी सामाजिक, आर्थिक, ये सारी व्यवस्था को बदलने के लिए एक हमें जो संविधान मिला है, उसके वजह से आज हर व्यक्ति इस हमारे भारत में एक खुली हवा में एक पूरे अपने अधिकारों के साथ जी रहा है। और इसी वजह से हम लोगों को हमारे देश की जो बहुत सारी बातें हमारे विपक्ष के नेता ने भी कही, मनुस्मृति दिखाई, बहुत सारी चीजें दिखाई, हजारों साल पुरानी व्यवस्था हमारे देश में थी ही, इसको कोई डिनाई करता ही नहीं है। लेकिन हमको देश को आगे बदलना है। जो पुरानी बातें थी हजारों साल पुरानी, उनको दोहराने से हमारा देश ऑलरेडी उससे आगे बढ़ चुका है। और वही बातें हमने ये किया, हमने वो किया, और हमने देश को आजादी दिलाई। देश को आजादी कुछ चंद नेताओं ने नहीं दिलाई, इस देश के लोग, आम आदमी ने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने, बिरसा मुंडा ने, ऐसे लोगों ने देश को आजादी दिलाई। और आप केवल हम ही ने आजादी दिलाई, हम भी आपके साथ थे, हम इस बात को इनकार नहीं करते। हमारे पिता भी उस आजादी की लड़ाई में, हमारे पिताजी भी थे। हमारे को कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी तो आजादी के बाद बनी। आजादी की कांग्रेस वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो फ्रीडम मूवमेंट थी। और इसीलिए बार बार हमने आजादी दिलाई। और बाकी सब लोगों ने क्या भजन किया?
इस देश के आम आदमी ने हमको आजादी दिलाई। वो अगर नहीं जुड़ते तो आजादी मिलने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज अगर हमारा देश 75 वर्षों के बाद भी हम खुले भारत में, आजाद भारत में जी रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, कहाँ पूर्वोत्तर है, कहाँ दक्षिण भारत है, कहाँ कश्मीर है, ये सारे जो मुल्क को एक रखने में केवल और केवल हमारे भारत के संविधान की शक्ति है। और इसी वजह से इसको हम लोगों ने ये हल्की बात करके 75 वर्षों की जो एक शानदार हमारा जो प्रवास रहा है उसको हम छोटा ना करें और छोटा ना दिखाए, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हमारे आजू बाजू के मुल्कों में देखिए, उन्होंने भी हमारे साथ साथ आजादी मिलाई, उसके बाद उन्होंने भी संविधान बनाया, लेकिन उनके संविधान वो टिक पाए क्या? वहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं टिक पाई क्या? कहीं मिलिट्री रोल आया, कहीं कू हो गया, कहीं और कोई बातें बनी। ये सारी हमारे संविधान की डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी टीम ने जो उस टाइम पे इसको फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई एक रात में बना नहीं है, बहुत मंथन हुआ, अलग अलग वक्ताओं ने बात कही है, इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत लोगों का इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसके साथ साथ जो बहस हुई उसमें योगदान रहा है, और उसमें प्रमुख योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे देश में हमने देखा है, क्योंकि आप लोगों ने राजनीतिक कुछ बात कही, इसलिए मैं भी कहूंगा कि अगर लोकतंत्र के इस प्रवास में सबसे बड़ा धब्बा अगर लगा था तो 1975 से 77 में लगा था। इमरजेंसी देश में लगी। हम लोग उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, सभापति महोदय, और कॉलेज में पढ़ते थे, हमें याद है कि किस तरह से लोगों को अपने जो मूल अधिकार थे उससे वंचित रखा गया। अरे लोग साहब खेतों में भागते थे, पेड़ों में जाके बैठ के छुपते थे, क्योंकि नसबंदी हो जाएगी, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता था। ये सब हम लोगों ने हमारे आंखों से देखा हुआ है, कोई नई बात हम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए आज अगर हम बात करते हैं तो कौन से इन लोगों के तरफ से ऐसी बात आई कि जो हमारी आजादी को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्षम करने के लिए रही है। मैं आपको बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।